A very good morning, everyone. We'll start the session in next few minutes. I hope my voice is audible. We'll start the session in next few minutes, guys. Request everyone to switch off the video, please. No need to switch on the video, guys. We'll start the session in next few minutes as we are waiting for more students to join in. किसी को वीडियो वगैरह ऑन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. We'll start the session max by 11:05.
Okay, a very good morning to one and all, or I would say a very good morning, a very good Sunday morning to one and all, and welcome to this session on magic of MBA, right? And as we have informed you about the session, so we'll talk about MBA, we'll talk about CAT, we'll talk about colleges, we'll talk about placements, we'll talk about preparation, what to prepare. ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर. My name is Prashant, and in this particular session, the next 40-45 minutes, I'll not be taking more time than this. In 40-45 minutes, just इस session को सुनिएगा. And as I said कि ये जो session है, देखिए आप संडे बिताने के लिए यहाँ पर आए हैं. I would say संडे 11 बजे you have taken this pain to listen to this particular session. There is something which you want to know, right? और अगर मैं वो नहीं बता पाया आपको, so I would fail in my responsibility as a speaker. And let's say अगर आप इस सेशन को सुनने के लिए आए हैं तो this is my responsibility कि मैं आप जो भी सुनने के लिए आए हैं, जो आप जानना चाहते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि वो मैं सब चीज आपके सामने रख सकूं, right? So this is what the objective of this session is all about. There will certainly be few takeaways from this session for sure. अगर आप संडे को ये सेशन सुनने के लिए आए हैं, so it's my moral obligation कि मैं इंश्योर करूं कि आप जो है वो ढंग की कुछ चीजों को सुन पाए या कुछ अच्छी चीजें सेशन से ले पाए. So with this, let's start this session today. A very good morning again to all, one and all. Before starting the session, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं. पहली चीज, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे. और अगेन मेरे सेशन के अंदर चैट बॉक्स को जितना एक्टिव रखिएगा प्लीज. और अगेन मैं सिर्फ 35 से 40 मिनट बात करूंगा और 40 मिनट के बाद मैं विंडो ओपन कर दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए. बिफोर इवन स्टार्टिंग द सेशन, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या कंसर्न है, क्या डाउट्स हैं, और आप इन सेशन को सुनने के लिए क्यों आए हैं. क्विकली इन द चैट बॉक्स प्लीज. क्विकली गाइस, क्विकली. Quickly guys, quickly in the chat box, quickly in the chat box. What do you want to listen? क्या आप सुनना चाह रहे हैं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, फटाफट. Whatever, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके कंसर्न है, that's perfectly fine. Quick guys, whatever your questions concern is, आप इस सेशन से क्या सुनना चाहते हैं. बिल्कुल ये सेशन, because I want to customize this session. मैं सेशन को ऐसा नहीं रखना चाहता कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं बता दो. So I was thinking to go for a CMAT examination. Okay, all about CAT and MBA. Very good, Zubil, I'll talk about it. CAT requires work experience, proper strategy. Okay, Sanskriti, I'll talk about that. Scope बताइए सर MBA का. CAT का प्रिपरेशन के बारे में बताइए, टॉप कॉलेजेस के बारे में बताइए. Okay, very good. What else? Confused about my profile. Very thing. Profile is coming. आजकल ये एकदम hot topic है, profile के बारे में बोलना. ठीक है. Okay, what else? Best colleges. Again, a subjective question. Best colleges. Careers after MBA. Wow, careers after MBA. Many people say MBA is not worthy. Okay, very good. Point is very good. So good. So more or less, I think my presentation is in sync with what do you want to say. So पूरी presentation मेरे ख्याल से sync में है जो आप बोलना चाहते हैं, and I'll make sure कि सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा. ठीक है, चलो. Best subject. Okay, done. So guys, पहली चीज हम लोग start करते हैं. हम लोग MBA के लिए जाते हैं. ठीक है, पहली बात मैं यहाँ पर बिफोर इवन गोइंग अहेड मैं पहले बात करूंगा. हम लोग जब MBA की बात करते हैं, सो आज इस सेशन का मेरा एजेंडा क्या है मैं उस पर बात कर देता हूँ. हालांकि मेरी प्रॉपर सेशन के अंदर आएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मैं स्टूडेंट से कनेक्ट ना कर पाऊं तब तक मजा नहीं आता है. सो मेरा कुछ पॉइंट एजेंडा क्या होगा. मेरा एजेंडा पॉइंट नंबर 1 होगा कि जो आप लोग बोल रहे हैं ये प्रोफाइल, मैं आज इससे रिलेटेड सारी मिथ्स को आज मैं डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूं. और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप मुझे बता दीजिएगा आपकी मिथ डिस्ट्रॉय हुई या नहीं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. ठीक है. दूसरी चीज जो मैं बात करूंगा, स्कोप ऑफ MBA. मैं MBA क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा. डेफिनेटली हमें कॉलेजेस सिलेक्ट करना है. सो कॉलेजेस सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए. ठीक है. और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज इज MBA, इज इट वर्थ गोइंग फॉर और नॉट. इन 4 चीजों में मैं बेसिकली बात करूंगा. पर यस, उसके बाद आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन एज वेल. मेरे ख्याल से आप सबका जो स्कोप, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये 5 चीजों से रिलेटेड है. ठीक है. अब एक एक करके चीजों पे स्टार्ट करते हैं. पहले मैं बात करना चाहूंगा MBA के बारे में. राइट. सो व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन कि मुझे MBA करना है या नहीं करना है. ठीक है, हम उस पर बात करेंगे. और उसके कुछ रीजंस क्या हैं. वो प्लेसमेंट का प्यार.
ठीक है, आई डोंट नो इफ ऋतुजा इज देयर और नॉट, अगर वो होती तो शायद मैं बात कर सकता था, बिकॉज देयर आर मेनी लाइव स्टूडेंट सेशन एज वेल। सो वो प्लेसमेंट्स का प्यार, हमें सर इंजीनियरिंग के बाद इंफोसिस नौकरी दे रहा है 3.5 लाख की, 4 लाख की। टेक होम सैलरी सर हमारी आ रही है 18,500 रुपए। हमारे को जॉब लोकेशन मिल रही है पुणे एंड बेंगलोर, पर पता नहीं हम लोग उस टाइम तो चले जाते हैं और 6 महीने बाद समझ में आता है मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा है, क्या कर रहा हूं मैं। सो वो प्लेसमेंट का प्यार, इसलिए हम डिसीजन लास्ट में लेते हैं। वो रिजेक्शंस का डर, पहले इतने रिजेक्शन से हम लोग डरे हुए हैं और रिजेक्शन नहीं झेल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी किसी ने बोला एमबीए इज वर्थी, बिकॉज कई लोग बोलते हैं एमबीए वर्दी नहीं है। वही किसी की कही सुनी बातों में आ जाना। अब जिन लोगों ने भी बोला है, गाइस ये बात सही है, कई लोग बोलते हैं एमबीए वर्दी नहीं है, यस और नो, यस और नो। कई लोग बोलते हैं ना एमबीए की तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कंपनी के अंदर 15,000 की नौकरी कर रहा है, 20,000 की नौकरी कर रहा है, यस और नो, क्विकली यस और नो चैट बॉक्स में आंसर देते रहना, बिकॉज अगर आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाए तो मजा नहीं आएगा इस सेशन को सुनने के अंदर, राइट। सो यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जो लोग बोलते हैं ना कि 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है, उन लोगों से पूछना कि जो लड़का आपके बैंक में या आपके कंपनी में 15,000 की नौकरी कर रहा है, अभी मैं आईएम्स का नाम तो लूंगा ही नहीं, चलो मैं आईएम्स का नाम नहीं लेता हूं, उसको तो अपन अलग रख देते हैं एक बार। उनसे पूछना क्या वो लड़का एमडीआई गुड़गांव का है, उनसे पूछना क्या वो लड़का एसआईबीएम पुणे का है, क्या वो लड़का एनएम मुंबई का है, क्या वो लड़का फॉर दैट मैटर एक्साई एमबी का है, क्या वो लड़का एक्सएलआरआई का है, क्या वो लड़का जीआईएम का है, क्या वो लड़का फॉर दैट मैटर एसपी जैन का है, या क्या वो केजे सोमैया का है, या क्या वो लेट्स से निटी मुंबई का है। इनमें से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो 15,000 की और 20,000 की नौकरी कर रहा होगा, राइट। अब पॉइंट ये है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी वही दिक्कत, हम लोग डिग्री से प्यार कर लेते हैं, हम लोगों को नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो चाहिए डिग्री। मुझे नहीं समझ में आता इसका रीजन क्या है। हम लोग 12th तक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्यों? संगत का असर बुरा होता है, अच्छी संगत होगी अच्छा आचरण होगा, हम ये अच्छा 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 करते रहते हैं। बट मुझे समझ में नहीं आता, जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है, तब हम हमारा दिल डिग्री से क्यों लगा लेते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे नॉलेज या कॉलेज अच्छा चाहिए। सर नॉलेज कॉलेज का मतलब क्या? उसका मतलब यह है, अब आप दूसरी चीज समझिए, बीकॉम वाला बंदा आगे एमकॉम करने के लिए क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको पता है मेरे यहां पर मैक्सिमम जो मैं करूंगा, मैं एक टीचर बन जाऊंगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आप किसी चीज से वाकिफ नहीं रखते हैं तो बता देना, ठीक है। बीए वाला बंदा एमए करने के लिए क्यों जाता है, राइट? या तो उसका सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, और या फिर अगेन वो उसको टीचिंग असाइनमेंट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, ठीक है। बीएससी वाला जो है वो अगेन आगे एमएससी के लिए क्यों नहीं जाता है? अगेन मेरा साइंस से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये सारे ग्रेजुएशन वाले या बीटेक वाला बंदा अगर आके एमटेक करने क्यों नहीं जाता? बिकॉज उसको शायद रिसर्च के अंदर और ज्यादा पसंद नहीं है, कि मैं और ज्यादा चीजें नहीं करना चाहता। अब ये सारे लोग इकलौता एमबीए स्पेशलाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि एमबीए स्पेशलाइजेशन उनको क्या सिखाता है? एमबीए स्पेशलाइजेशन उनको मार्केटिंग सिखाएगा, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा, उनको फाइनेंस के बारे में बताएगा, उनको ईमेल लिखना बताएगा, उनको न्यूज़पेपर के बारे में बताएगा, उनको वर्ल्ड अफेयर के बारे में बताएगा, उनको प्रेजेंटेशंस देना सिखाएगा, उनको नेगोशिएशन स्किल्स दिखाएगा। ये स्किल्स कोई भी मास्टर स्पेशलाइजेशन नहीं सिखा सकता, और ये स्किल्स वो स्किल्स हैं जो आज के बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड है। मुझे अब एक बात बताना, क्या एमटेक किया हुआ बंदा, मैं जो कुछ चीजें पूछ रहा हूं सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड में, सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, बाकी चीजें मत छोड़ना, क्या वो एमटेक किया हुआ बंदा अमेज़न की हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच सकता है क्या? मुझे ये बताओ। एमटेक किया हुआ बंदा अमेज़न की हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच सकता है जिसके अंदर सिर्फ टेक्निकल स्किल्स हैं? अगर ऐसा होता तो कभी भी सुंदर पिचाई एमबीए नहीं करता।
अगर ऐसा होता तो कभी भी सुंदर पिचाई एमबीए नहीं करता। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो अगर ऐसा होता तो सत्य नाडेला मैनेजमेंट के कोर्स नहीं करते। तो ये लोग अच्छे एमटेक थे, इन्होंने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर से मास्टर्स किया है, तो ये क्यों जाके एमबीए करे? बिकॉज इनको हाईएस्ट पोस्ट के अंदर पहुंचना था। एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जो लोग मेरे को बोल रहे हैं वर्थी है या नहीं है, अच्छे कॉलेज में जाओ दोस्तों, कॉलेज से प्यार करो। और इसीलिए जो लोग दूसरा बोलते हैं हमें कैट क्यों देना चाहिए, क्योंकि अगर कैट नहीं दिया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अभी तक मैंने आईएम्स की बात छेड़ी नहीं है, अभी तक तो मैंने आईएम्स की बात छेड़ी नहीं है, उस पर तो मैं आऊंगा, ठीक है। कैट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। अगेन कहीं की किसी की कई सुननी बातों में आ जाना, कैट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं बताता हूं, कैट के अंदर जितने लोगों के 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, 80 परसेंटाइल अगर बोल लो, कैट में अगर कोई बोलता ना मेरे 80 परसेंटाइल आए, तो समझ लेना उसके कितने मार्क्स होंगे। उसके मार्क्स होंगे लगभग 40% के आसपास, 40 भी नहीं, 33% मार्क्स के आसपास होंगे, उसका 80% आ गया होगा। 33% मार्क्स में उसका 80 परसेंटाइल आ गया होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। कैट टफ है बिकॉज हम उसको टफ बनाते हैं, मैं बताऊंगा इस बात पे। और अगेन यहां पर हमारा जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है ना, ये हमारी पूरी जिंदगी यहीं पर ही खत्म कर देता है। हमारी ये पूरी जिंदगी कहीं पर ही खत्म कर देता है। मुझे एक बात बताइएगा, चलो मैं बाद में आऊंगा इस बात पे, इस बात को नोट कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। कैट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें आऊंगा। एमबीए की कोई वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर मैंने बात कर ली है। सो दीज आर द रीजंस जो हम लोग डिसीजन इतना लेट लेते हैं, अदरवाइज कोई लेट लेने का रीजन की है। अच्छा, अब रियलिटी क्या है, रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। रियलिटी ये बोल रही है कि आप, अगर हम रियलिटी की बात करें, रियलिटी ये बोलती है कि आप एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लीजिए। और वो रियलिटी क्या है आप ये समझने की कोशिश कीजिए। आज आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन डिग्री पे हैं, मुझे बताइए 15-20 हजार से ज्यादा की जॉब मिलेगी क्या? क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्विकली इन द चैट बॉक्स, 15-20-25 हजार से ज्यादा की जॉब मिलेगी? क्विकली चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आपके सारे मिथ आज क्लियर कर देना चाहूंगा, ठीक है। किसी को नहीं मिलेगी सर, सबको पता है नहीं मिलेगी। अब हमारे को क्या होता है सर, हमें ना कैट करना है। कैट करने के लिए व्हाट वी गेट इनटू, सर कैट करने के लिए आईएम्स में जाना है। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए। बट सर एक प्रॉब्लम है, क्या? मेरे ना 10वीं 12वीं के अंदर ना मार्क्स अच्छे नहीं है, मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे नहीं है। और आई एम अहमदाबाद जो है ना, और आई एम बैंगलोर, और आई एम कोलकाता जो है, ये लोग प्रोफाइल के बेसिस पे नहीं लेंगे। मैं बहुत दुखी हूं। अबे मेरे भाई, तेरे को यहाँ कोई 15-20 हजार की नौकरी नहीं दे रहा है, तू 10वीं का कुछ कर नहीं सकता है, 12वीं का कुछ कर नहीं सकता है, ग्रेजुएशन तेरी हो चुकी है, करेगा क्या? अरे रो क्यों रहा है? एमडीआई भी एवरेज पैकेज 17 लाख रुपए का देता है यार। नहीं जाओगे क्या? मुझे बताओ, नहीं बताओगे क्या? मुझे ये बताओ। अगर मान लो एसआईबीएम एवरेज पैकेज 10 लाख रुपए का दे रहा है, नहीं जाओगे क्या? राइट। अगर कोई बंदा 10-12 लाख का भी पैकेज दे रहा है, नहीं जाओगे क्या? यस और नो, वो बताओ। अभी तो तुम 15,000 पे नौकरी कर रहे हो यार। बट पॉइंट इज, हम लोग कई सुनी बातों पे आ जाते हैं, प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल बहुत वीक है। अरे गाइस, आप ये सोचिए आपका करंट स्टेटस क्या है। तो दिनेश, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बिल्कुल जाएंगे ना दिनेश भाई? अगर आईएम में नहीं होगा तो एमडीआई एसआईबीएम भी जाएंगे ना? करंटली से तो अच्छा ही है ना, क्या बोलते हो? करंटली से तो अच्छा ही है ना। बिकॉज पॉइंट इज, करंट में 15,000 को मैं बढ़ाते 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 महीने की 60,000 की इनकम करने के लिए मुझे कम से कम 5 साल लग जाएंगे यार। और एमबीए के अंदर अगर ठीक ठाक सा कॉलेज मिल गया, अभी मैं आईएम्स की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। आईएम्स 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 आईएम्स। आपका करंट स्टेटस देखो, आईएम में जाना गंदी बात नहीं है, बट रियलिटी देखना भी बहुत जरूरी है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टार्ट विद टुडे। सो मेरे हिसाब से मैं जो बोलता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैनेजमेंट होता है। दाना पानी तो खिला देगा, बिल्कुल ठीक है। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो ऐसा तो क्या सिखाता है? हम लोग बात कर रहे हैं सर, बीकॉम के अंदर हमारे को 15-20 हजार की नौकरी नहीं मिलती है, राइट। ऐसा एमबीए के अंदर क्या हो जाता है? वाई एमबीए? पॉइंट नंबर 1, एलिवेशन। पॉइंट नंबर 1 जो मैं बोल रहा हूं, एलिवेशन। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, आपको 5 साल लग जाएंगे कम से कम, अगर आपको 60,000 भी महीने का कमाना है तो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एवरेज पैकेज ऑफ 7 लाख, ठीक है। एक सी कैटेगरी कॉलेज से आपको ये स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है। सी कैटेगरी कॉलेज, जहां पर मैं बात कर रहा हूं 80 से 85 परसेंटाइल वाले कॉलेज की, 33% मार्क्स। यही चीज अगर तुम बी कैटेगरी कॉलेज में चले जाओ, 90-95 परसेंटाइल के अंदर, यही पैकेज तुम 12 लाख के आसपास से 15 लाख के आसपास ले सकते हो, राइट, स्टार्टिंग। और यही अगर तुम ए कैटेगरी के अंदर ले लो तो एवरेज पैकेज 20 लाख रुपए स्टार्ट होता है। मैं कह रहा हूं अगर मान लो ए में नहीं हुआ है दोस्तों,
ए में नहीं हुआ दोस्तों, तब भी अपने करंट स्टेटस के हिसाब से देखो मिल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर एडमिशन मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। आपको अमेजोन में जाना है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आपको फ्लिपकार्ट ज्वाइन करना है, बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। आपको टीसीएस विप्रो ज्वाइन करना है, बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। आपको जाइडस ज्वाइन करना है, बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। आपको स्टार्टअप्स ज्वाइन करने हैं, बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। आपको फार्म इजी में जाना है, बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है, बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। यू नेम एनी डैम सेक्टर, यू नेम एनी डैम सेक्टर, बैंक, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, आप हर जगह जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन टू इट। सो दैट्स व्हाई एमबीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको दिखाता है, सिखाता है बिजनेस करना। अच्छा, दूसरी चीज, स्टूडेंट्स कई बार कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, विच सब्जेक्ट शुड आई चूज। सर आप बताइए, मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस है, मेरा इंटरेस्ट एचआर है, मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग है। भाई पहले ऑप्शन को कम कर, पहले कैट की परसेंटाइल पे ध्यान दे दोस्त। कैट की परसेंटाइल आ गई, ये चीज सेकेंडरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम कभी भी देखना, आईएम्स जो है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हमारा सबसे अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज हिंदुस्तान का, द मक्का ऑफ मैनेजमेंट, राइट, आईएम अहमदाबाद। वो आपको कहीं कहीं पर भी स्पेशलाइजेशन नहीं देता है, वो आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं देता है। अब आप समझो, ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सीट बढ़ाने के तरीके हैं, हमारे दिल को तसल्ली देने के तरीके हैं। ये क्यों नहीं देता है स्पेशलाइजेशन, इस बात को समझने की कोशिश करना। क्योंकि आप अगर मान लो मैनेजर बनने जा रहे हैं, मैनेजर ऑफ बिजनेस, मैनेजर ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री एजुकेशन कंपनी चला, ठीक है। मुझे बताइएगा एक एक करके, क्या मुझे मार्केटिंग आनी चाहिए या नहीं? क्विकली इन द चैट बॉक्स एक एक करके बताइएगा, क्या मुझे मार्केटिंग आनी चाहिए या नहीं? जल्दी चैट बॉक्स, यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आनी चाहिए सर। क्या मुझे फाइनेंस आना चाहिए या नहीं? पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, मुझे फाइनेंस आना चाहिए या नहीं? क्विकली इन द चैट बॉक्स चैट करते रहिए गाइस, मजा आ रहा है। आर यू गाइस एंजॉयिंग, आर यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन, राइट? इसलिए मैं बोल रहा था मैं भी कॉलेजेस वगैरह सब पे बात करूंगा, ठीक है। मुझे ऑपरेशंस आने चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, आपको ऑपरेशंस भी आने चाहिए। मुझे ह्यूमन रिसोर्स आने चाहिए या नहीं? कौन सा फैकल्टी आ रहा है, कौन सा जा रहा है, मुझे ये भी आना चाहिए, ठीक है। सो आई शुड नो मार्केटिंग, आई शुड नो फाइनेंस, आई शुड नो ऑपरेशंस, आई शुड नो एचआर। मुझे इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए या नहीं, कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपीस के अंदर सेल करना है जिससे मैं मेरा ब्रेक इवन डाल पाऊंगा। मुझे सब चीज आनी चाहिए। तुम बोलते हो मुझे करना बिजनेस है, किसमें एमबीए किया है? मार्केटिंग में। अबे कैसे बिजनेस चलाएगा, कैसे बिजनेस चलाएगा? सो द पॉइंट इज, ये चीजें सेकेंडरी है, और इसीलिए एमबीए के अंदर पहला 1 साल, पहले 2 सेमेस्टर आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू, और ये एक अच्छा कॉलेज आपको सिखाया जा सकता है। तो अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छा पीयर ग्रुप होगा, अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छे फैकल्टी होंगे, अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छे रिसोर्सेज होंगे। आप जितने भी अच्छे कॉलेजेस देखोगे, उनका रेजिडेंस भी अंदर ही होता है, बिकॉज दे वांट यू टू इंटरेक्ट विद योर पीयर। आईएम्स के अंदर जाने का फायदा क्या होता है? एल्यूमिनाई कांटेक्ट, ठीक है। आपको जब भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, हम लोग ये देखते हैं ना शार्क टैंक, हम लोग ग्रोवर की बात करते हैं, हम लोग मामा अर्थ वाले विनीता मैम की बात करते हैं, हम लोग मिस नायर की बात करते हैं फ्रॉम नाइका, बिकॉज दे गेट द फंडिंग फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप। इनका पीयर ग्रुप एक अच्छी जगह गया हुआ होता है, के एल्यूमिनाइज अच्छी जगह गए होते हैं, ये अपने एल्यूमिनाइज से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बिजनेस आइडिया दे सकते हैं, और वो एल्यूमिनाइज इतनी अच्छी पोजीशन पे होते हैं कि वो करोर्स ऑफ फंडिंग इनको दे सकते हैं, जो आपको अच्छे कॉलेज में या नॉर्मल कॉलेज के अंदर नहीं मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस। द हायर, अच्छा सा कॉलेज, ये सारी चीजें मिलती हैं, और इट टिपिकली गोज डाउन। सी कैटेगरी कॉलेज, टिपिकली आप जॉब से एक बार संतुष्ट रहे, धीरे धीरे आप बिजनेस पे जा सकते हैं। ए कैटेगरी कॉलेज, आप फंडिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो एमबीए कॉलेज क्या सिखाता है? एमबीए कॉलेज कुछ इस तरीके की चीजों पे आपको सोचने पे मजबूर करता है। एमएसपी का फार्मर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट में क्या इफेक्ट हुआ है? क्या मैं कुछ बिजनेस आइडिया यहां से जनरेट कर सकता हूं? कैंडीमैन वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर आईटीसी। व्हाट एग्जांपल कैन आई टेक फॉर माय बिजनेस? We are talking about discrimination in education due to online learning. What other things I can do to remove this discrimination? We are talking about COVID and innovation. What all innovative things I can do? How many industries are impacted due to the semiconductor shortage? अगर ये चीजें सोचने में मजबूर आपको एक नॉर्मल कॉलेज नहीं करेगा, और एक नॉर्मल आपको कॉलेज, एक नॉर्मल डिग्री आपको ये चीजें सोचने में मजबूर कभी नहीं करेगी। What MBA teaches you? आपको MBA क्या पढ़ाता है? Absolutely nothing.
आप लोग ही हैं जो एक कॉलेज को अच्छा बनाते हैं। आप क्या करते हैं एमबीए के अंदर, क्या सीखते हैं आप एमबीए के अंदर? यू सी ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स। ओवरऑल मुझे चीजों को देखने का नजरिया मेरा बदलता है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स, मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स समझता हूं, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स देखता हूं, मैं वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स सीखता हूं, मैं ईमेल कैसे करने हैं वो देखता हूं, मैं लॉजिक डेवलप करता हूं, मैं आर्ग्यूमेंट डेवलप करता हूं, मैं एटिकेट सीखता हूं, मैं नेगोशिएशन सीखता हूं, मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम सीखता हूं। आप जितने भी आईएम्स के अंदर जाएंगे वहां आपको आजकल जैसे जितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, इन स्टार्टअप के फाउंडर आते हैं आईएम्स के अंदर, वो इंटरेक्ट करते हैं बैचमेट्स के साथ, वो इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि हमने यहाँ से क्या क्या सीखा, हमने उसको बिजनेस में क्या लगाया, आपको हमारे से क्या प्रॉब्लम चाहिए और वो क्या हेल्प चाहिए, और वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम लेके आते हैं कि आप हमारे को इसका सॉल्यूशन दो। करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। शायद यहां में कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो करंट अफेयर्स के बारे में सोचते भी नहीं है, राइट। इकोनॉमी एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड स्किल्स, ये सारी चीजें आपको एमबीए सिखाता है जो कि कोई और मास्टर डिग्री नहीं सिखाता है। इसलिए लोग एमबीए की तरफ जाते हैं और इसलिए लोग बोलते हैं कि जो एमबीए करा सकता है वो कोई और नहीं करा सकता है। हम बात करते हैं, अब जब हम बोलते हैं ना एमबीए में ऐसा तो क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट यू, इट इज ऑल अबाउट यू, इट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। ये हमेशा तुम लोगों से ही बनता है, फैकल्टी से नहीं, राइट। यहां पर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जाते हैं, यहां पर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जाते हैं, इसीलिए कॉलेज ब्रिलियंट बनता है और इसीलिए आपके मैनेजमेंट एग्जाम्स के टेस्ट होते हैं। यहां पर आपको सिखाए जाते हैं केस स्टडीज, यहां पर आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, लेट नाइट असाइनमेंट्स, ताकि वो देखना चाहते हैं हाउ गुड यू आर इन योर टाइम मैनेजमेंट, आप अच्छे मैनेजर बन पाएंगे या नहीं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसी हैं, वहां आपकी केस स्टडीज चेक होती हैं। आपको रीडिंग एंड स्टडी मटेरियल दिया जाता है सो दैट यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर। आपको अगर आईएम से कॉल आता है और अगर आप आईएम कन्वर्ट कर लेते हो, एक महीना पहले आपको टास्क दे दिया जाता है कि पहले दिन जिस दिन आप कदम रखेंगे ये 4 किताबें कंप्लीट करके आना। दैट इज समथिंग द लर्निंग व्हिच आईएम गिव्स यू, राइट। लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, इंटर्नशिप्स मिलती हैं, और इंटर्नशिप्स कैसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप्स आती हैं, राइट। इंटर्नशिप्स आती है कंपनी लाइक कोको कोला, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, पेप्सिको। ये कंपनी दे डोंट नॉक आउट ऑन द डोर्स ऑफ अ नॉर्मल कॉलेज डिग्री प्रोग्राम, ये आपको एमबीए से एक्सपोजर मिलता है। सो ऑल दिस थिंग्स बॉइल्स डाउन टू कि मुझे क्यों एमबीए करना चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट एमबीए व्हाई। सो मैंने व्हाई एमबीए करने के लिए आपको कुछ रीजन बता दिए, ठीक है। नाउ गेटिंग इनटू कॉलेज, और इसके बाद मैं प्रिपरेशन पे जाऊंगा। अब कॉलेज से पहले एक चौथी चीज जो आप लोगों ने बोली थी, प्रोफाइल। हम लोग प्रोफाइल को लेके बहुत दुखी रहते हैं। क्या है ये दुख, उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। मेरे 10th के स्कोर सर अच्छे नहीं है, मेरे 12th के स्कोर अच्छे नहीं है, मेरे ग्रेजुएशन का स्कोर थोड़ा कम है। अब अच्छे नहीं का मतलब क्या है, यहाँ पर 70% है, यहाँ 72% आया हुआ है, यहाँ अगेन 75% आया हुआ है, ठीक है। आई एम अ मेल मेंबर, ठीक है, एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बच्चा दुखी है, मैं बैठा हूं, क्या हो गया भाई? सर बहुत दुखी है। क्या सर? प्रोफाइल अच्छी नहीं है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? फटाफट, सबको पता है ना प्रोफाइल के बारे में। कई लोगों ने मेरे से पूछा प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल, हाँ क्विकली क्विकली, है ना। अब मैं जो चीजों पे बात कर रहा हूं, मेरे को मेरी उन बातों को ध्यान से सुनना। 10th और 12th इसको दोबारा दोगे क्या? क्विकली इन द चैट बॉक्स जवाब दो। आप बीकॉम करे हुए हो, आपको 10,000 से 15,000 की नौकरी मिल रही है, आपके पास आगे या तो एमकॉम करने का है या एमबीए करने का है या फिर शादी कर लो, इन तीनों में से एक चीज करनी है, ठीक है। क्या करोगे मुझे बताइए। अब मैं कह रहा हूं, तुम ये तुम्हारी कंडीशन है, तुम्हारी प्रोफाइल ये है, ठीक है। अब हम रो रहे हैं, अब हम रो रहे हैं, ठीक है। सर पॉइंट इज क्या करें, प्रोफाइल नहीं है, आईएम एडमिशन नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये वो सब चीजें कर रहे हैं। 10वीं 12वीं वापस दोगे नहीं, ठीक है। चेंज मत करा लेना, पता लगा आईएम एडमिशन नहीं दे रहा, चेंज करा दिया जेंडर, मत करा लेना, ठीक है। इसका कुछ कर नहीं सकते। क्यों रो रहे हो? जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको क्यों रो रहे हो? और जब तुम प्रोफाइल की बात करते हो ना, ये सब कॉलेजेस का बनाया पूरा वो है कि प्रोफाइल 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 प्रोफाइल। जिससे बात कर लो बोलता आईएम के लिए प्रोफाइल, आईएम के लिए प्रोफाइल। अरे बंदा अगर नहीं जा पा रहा है आईएम की 500 सीट के लिए, 120 करोड़ जनता है, तो क्या मैं एमबीए करने का सपना छोड़ दूं?
नहीं, मेरे पास अच्छे कॉलेज हैं, ये नहीं बोल रहा मैं कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले आओ। आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए जहां आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, मतलब जो मैं फीस पे कर रहा हूं उसके रिगार्डिंग मेरे को प्लेसमेंट मिले। मुझे ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए जहां पर मेरी अच्छी लर्निंग हो। मुझे ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए जहां मुझे ठीक पीयर ग्रुप मिले। और अगर ये चीज मुझे ऐसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए जहां मेरी एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उससे एटलीस्ट मैं बेटर हो जाऊं। और अगर ये चीजें मिल रही हैं तो करो ना यार एडमिशन। टारगेट आईएम के लिए करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम एमबीए एडमिशन का सपना छोड़ देंगे यार। हर जगह सेम चीज हो रही होती है। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस। मैं अब ये सारी मिथ आपकी खत्म करना चाह रहा हूं। और ये जो प्रोफाइल की कहानी है, ए बी सी के एफएमएस, इसको छोड़ के कोई प्रोफाइल की बात नहीं करता है। इसको छोड़ के कोई ज्यादा प्रोफाइल की बात नहीं करता है। तो इसके अलावा जिंदगी है दोस्तों, इसके अलावा जिंदगी है। आपके 10वीं 12वीं स्कोर से टेंशन मत लो। और वही चीज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। मैं आपको 8-9 क्लस्टर के अंदर सारे कॉलेजेस को डिवाइड करूंगा और उसके बेस पे मैं बताऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं। राइट, लेट्स गो टू क्लस्टर नंबर 1। क्लस्टर 1 क्या बोल रहा है? जिसकी एवरेज सैलरी 20 लाख रुपए प्लस एनम है। ठीक है, अब इसके अंदर आई एम कोलकाता है, आई एम अहमदाबाद है, आई एम बेंगलोर है, एसपी जैन, बट हमारी तो आई एम से दिल लगा हुआ है, एफएमएस, एक्सेल आरआई। राइट, ये सारे नॉन आईएम्स कॉलेज क्लस्टर 1 में है जिसका एवरेज पैकेज 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा अब तुमने बोला अच्छा सर इसकी प्रोफाइल बताओ। अब इसकी प्रोफाइल की हालत देखो। प्रोफाइल के अंदर खैर एफएमएस ने इस बार कुछ परसेंटेज यहां शुरू कर दिया है देना। ठीक है, सम 10% के हिसाब से देना शुरू कर दिया। अब सोचो, अब मैं कह रहा हूं जब आपको कॉल आता है, ये आपका टेस्ट स्कोर का वेटेज होता है, मतलब कैट स्कोर का वेटेज। नहीं चाहिए, मेरा प्रोफाइल नहीं है, मेरा प्रोफाइल नहीं है, मेरा प्रोफाइल नहीं है, मान लिया। अगर मान लो तुम्हारे को एफएमएस एक्सेल आरआई से कॉल आएगा तो नहीं जाओगे क्या? मुझे बताओ, यस और नो, yes or no। फटाफट all 60 students should chat in the box, guys should reply in the chat box। मैं आपको बोला था ये वीडियो के अंदर certain takeaways होंगे। पॉइंट इज ये मिथ अपने दिमाग से निकालो और एमबीए के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ होगा। लेट्स टॉक अबाउट क्लस्टर 2। क्लस्टर 2 के अंदर बात करते हैं। बाकी लोग सो गए हैं, जाग रहे हैं, गाइस रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई बिल्कुल जाएंगे सर। क्लस्टर 2 17 से 20 लाख रुपए, 17 से 20 लाख रुपए एवरेज पैकेज की बात करी है मैंने यहां पर, मैं हाईएस्ट पैकेज की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। इसके अंदर एमडीआई गुड़गांव कोई प्रोफाइल नहीं देखता है। ये तुम्हारा येलो वाला जो है ये तुम्हारी फीस है। ठीक है, आईएफटी अपना अलग से एग्जाम लेता है दिल्ली, एमडीआई का एचआर प्रोग्राम, आईआईटी बॉम्बे इंजीनियर्स के लिए 3 लाख रुपए फीस, 19 लाख एवरेज प्लेसमेंट, जमनालाल बजाज, टिस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस अपना अलग से एग्जाम लेता है, निटी इंजीनियर्स के लिए। अरे 2 आईएम है, 2 आईएम नहीं जाना है, नहीं जाना है। अगर ये आईएम प्रोफाइल मांग रहा है तो यार मेरे आईएम के सपने को कौन नीचे कर सकता है? सिर्फ ये दोनों लोग, मतलब मेरे एमबीए के सपने को नीचे नहीं कर सकता आईएम्स। आई कैन डू वेल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे अगर एक बार लोन लेने के बाद अगर मुझे एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक मिल रहा है, मैं जाऊंगा बिकॉज मेरी करंट स्थिति से ऊपर है। क्लस्टर 3 15 से 17 लाख रुपए, देखो क्लस्टर 3 15 से 17 लाख रुपए कॉलेज हैं। क्लस्टर 4 13 से 15 लाख रुपए कॉलेजेस हैं। अब मैं क्लस्टर 7 पे जाता हूं, एक बार होल्ड कीजिए। क्लस्टर 7 10 से 11 लाख। मुझे एक बात बताओ, आज की स्थिति के हिसाब से क्या 10 से 11 लाख गलत है क्या? मुझे बताओ, आप जिस कंडीशन में हो उसमें 10 से 11 लाख भी गलत नहीं है। और 85 परसेंटाइल पे आपको ये 10 से 11 लाख मिलेगा। सो भाई एक चीज ध्यान रखो, एमबीए यू शुड गो फॉर इट, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो रिमूव द मिथ कि हमें सिर्फ ये आईएम्स के लिए टारगेट करेंगे। मैं फिर मना नहीं कर रहा हूं, हमारा प्रोफाइल है तो हम बिल्कुल जाएंगे, बट अगर नहीं भी है तो हम लोग एमबीए जरूर करेंगे। और विद दिस आई एम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन। और मैंने बोला था मैं 40 से 45 मिनट के अंदर सेशन को कंप्लीट कर दूंगा। अगला 10 मिनट में बात करूंगा आप लोगों से कैट एग्जाम के सेक्शन के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैट एग्जाम। कैट बहुत टफ है, बहुत टफ है सर कैट। चलो लेट्स सी कैट के अंदर क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कैट। कैट के अंदर 3 सेक्शन, ठीक है? इसके अलावा सारे एग्जाम्स लगभग इसी तरीके से हो जाएंगे। सो फर्स्ट सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड सेक्शन जो इसके अंदर आता है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। और थर्ड सेक्शन इसके अंदर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहां पर मैं आप लोगों की दूसरी मिथ क्लियर करूंगा।
कई लोगों के क्वेश्चन कंसर्न होते हैं, क्या प्रिपेयर करें, क्यों करें, कब से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर छोड़ता हूं। रीजन क्या है, स्टूडेंट्स को कई बार अगर मैं बोलो, अच्छा 2-3 क्वेश्चन मैं उस पर बात करता हूं बिफोर आई गेट इनटू दिस। सर ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेल्फ प्रिपेयर करें या कोचिंग लें। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। और स्टार्ट कब करें, 1 ईयर में करें या 2 ईयर में करें, या फिर लेस देन कुछ मंथ्स के अंदर करें। ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं, यस और नो। यस और नो, मैंने क्या बोला था, मैं इस सेशन को जब तक खत्म करूंगा मैं आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। दीज आर द क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। एक एक करके इसमें बात करते हैं। तय आपको करना है, तय आपको करना है, मैं नहीं करूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है सर, प्रिपरेशन कब करनी चाहिए, राइट? ये चीज आप खुद डिसाइड करेंगे, और वो डिसाइड किस बेस पे करेंगे? कैट का कोई भी एक मॉक दे डालो, कैट का कोई भी एक मॉक दे डालो, पुराने मॉक्स हर जगह मिल जाएंगे, गूगल पे डालो, पुराना कैट का पेपर मिल जाएगा। ये खुद डिसाइड करो मुझे कब करना चाहिए। और अंदर से आवाज यही आएगी, बेटा तू तो गया। अगर यहां पर हो तो आवाज आएगी, बेटा तू तो गया। यहां आवाज आएगी, संभल जा। और यहां आ जाएगी, जल्दी कर। समझ में आ रही है मेरी बात? आप डिसाइड करो, मैं नहीं कर रहा हूं। बिकॉज द पॉइंट इज, जब आप बोलते हैं ना डिफिकल्टी लेवल, वो रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन के अंदर इट डजेंट मैटर कि आपका परसेंटेज क्या आ रहा है, इट मैटर्स कि आपका कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, और आपको उससे आगे होना है। हम लोगों की जनरली प्रॉब्लम कहां है? हम लोगों की रीडिंग हैबिट्स नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है। और पूरा पेपर नॉट ओनली वर्बल, LRDI इज आल्सो बॉइलिंग डाउन टू पेपर, बैड प्रोसेस, PI प्रोसेस। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम बीकॉम वगैरह और BA स्टूडेंट्स की, सर बीकॉम कॉमर्स और आर्ट्स लिया इसलिए था, मैथ सुन के तो वाट लग जाती है। यस और नो? कॉमर्स स्टूडेंट्स प्लीज, कॉमर्स, हाँ बायोलॉजी स्टूडेंट, सही बोल रहा हूं ना सर? मैथ्स मत कराओ, वी हैव अरिथमोफोबिया सर। हाँ, सो अगर मैथ सुन के वाट लग जाती है तो तुम्हें उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो मेरा पहला सजेशन, कैट का कोई भी पेपर दे डालो और डिसाइड कर लो। यहां तुम्हारा आंसर खुद मिलेगा तुम्हारे को, मैं नहीं दूंगा। ठीक है। दूसरा, सर खुद प्रिपरेशन करें या कोचिंग करें? आज के टाइम में कहीं पर भी कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है। 100% कंटेंट आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहां है? मैं पढ़ूं क्या, मैं स्टार्ट कहां से करूं, पॉइंट नंबर 1। मैं मेरा स्ट्रक्चर क्या बनाऊं, पॉइंट नंबर 2। मैं सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ूं, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, और जो मैं कर रहा हूं व्हाई आई हैव टू डू। मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मेरे को मोटिवेशन चाहिए। मेरी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही, बिकॉज यूट्यूब तो इतने सालों से है। मैं कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाया यूट्यूब से, मैंने कोविड के अंदर देखा है। तो कैट का कंपटीशन कैसे करूंगा? मेरे को रेगुलरिटी नहीं है। मुझे किस टाइम क्या पढ़ना है? अगर मान लो कोई फंक्शन आ गया, कोई शादी ब्याह आ गया, तो हम तो चले जाते हैं, दोस्त दोस्त के साथ चले जाते हैं। मेरे को ऊपर कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, मेरे को ऊपर कोई डंडा मारने वाला नहीं है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं, और इसलिए सो कल्पेश सर 1+7 इज यश विजयवर्गीय। सो ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए आपको जो है ये कोचिंग की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कंटेंट अवेलेबल है। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? एम आई मेकिंग सेंस? यस और नो इन द चैट बॉक्स नाउ। समझ में आ रहा है लॉजिक? क्विकली, एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कमिंग ऑन टू लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, मैंने पहली चीज आपको बोला खुद डिसाइड करें। अब मैं लास्ट चीज पे आ रहा हूं जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। सर ऑफलाइन कोचिंग करें या फिर हम लोग ऑनलाइन कोचिंग करें? इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। याद करो वो बचपन के दिन जब आप ट्यूशन वगैरह जाते थे, ठीक है? आप बड़ी से बड़ी ट्यूशन पे चले जाते हैं, बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चले जाते हैं, आपको अच्छे अच्छे टीचर के नाम सुनने को मिलते हैं, इसके पास चला जाओ, उसके पास चला जाओ। गाइस, कई बार ऐसा होता है या नहीं होता है कि हम लोग पड़ोस के भैया के पास जाते हैं और मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, जो कि बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं करा पाता है। यस और नो? एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो बताओ। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हम लोग कई बार पड़ोस के भैया के पास चले जाते हैं, तो वो भी हमारे को अच्छे मार्क्स दिलवा देता है या नहीं?
क्या ये नेसेसरी है कि एक ब्रांड नेम ही दिलाएगा? क्या ये नेसेसरी है कि एक अच्छा टीचर ही आई मीन एक अच्छा ब्रांड कॉलेज वाला बंदा ही कराएगा? ऐसा कोई नहीं है ना। सो पॉइंट इज, जहां आपका कनेक्ट बैठता है वहां जाओ कोचिंग करने। नथिंग कॉल्ड एज ऑनलाइन ऑफलाइन। कोविड ने ये सारी दीवारें खत्म कर दी हैं। मैं सिर्फ कोविड की वजह से ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 8 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और 8 साल से बच्चा मेरे पास कनेक्ट भी कर रहा है, सब रिजल्ट भी आ रहा है। आपको अगर कनेक्ट बैठता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग के अंदर जाइए, बिकॉज इसके अंदर जो मैंने वो लिखा था, मेंटरिंग, मोटिवेटिंग, आपका ऊपर आपको लग रहा है आपको कोई मॉनिटर करे, आपको मोटिवेट करे, आपको कुछ टास्क दे, आपको रेगुलरिटी बना के रखे, आपकी लाइव क्लासेस रेगुलर हो, ये सब कुछ ऑनलाइन के अंदर होता है। आई डू इट, राइट? आस्क ऑल द लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स जो सेशन के अंदर हैं, आई डू इट, आई मॉनिटर, आई नो मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, किसके क्या कंसर्न है, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम मॉनिटरिंग। सो लाइव क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, दैट इज एवरीथिंग पॉसिबल। आपका जहां कनेक्ट हो वहां करिए, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू प्रिपरेशन लेवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एलआरडीआई एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अगर हम लेट्स से बात करते हैं कैट 2021 की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर थे 24, यहां थे 20 और यहां थे 22, ठीक है। ये कुछ स्टेटस था। अब इसके अंदर अगर आपको 99 परसेंटाइलर लेके आने हैं, ठीक है, तो आपको नेट करेक्ट क्वेश्चंस कितने चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। यहां आपको नेट करेक्ट क्वेश्चंस चाहिए थे लगभग 15। 95 परसेंटाइल के लिए आपको नेट करेक्ट क्वेश्चंस चाहिए लगभग 12 के आसपास। 90 परसेंटाइल क्वेश्चन के लिए आपको लगभग क्वेश्चन चाहिए 10 के आसपास। और 85 परसेंटाइल के आसपास तुम्हें क्वेश्चन चाहिए अगर बोलूंगा तो 8 के आसपास, आउट ऑफ 24। और आपके वो जो लास्ट में 10-12 लाख वाले पैकेज थे, वो कहीं ना कहीं 90 और 85 के बीच में सारे अवेलेबल है। समझ में आ रही है बात? लेट्स गो टू एलआरडीए। एलआरडीए के अंदर 99 परसेंटाइलर लाने के लिए मुझे क्वेश्चन नेट करेक्ट चाहिए थे 10। 95 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे चाहिए थे समवेयर अराउंड 8। 90 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे चाहिए लगभग 6। और 85 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे लगभग 5 मार्क्स चाहिए, 5 क्वेश्चन चाहिए। क्वांट्स के अंदर 99 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे चाहिए 12 से 13 क्वेश्चन। 95 के लिए मुझे चाहिए 10 से 12 क्वेश्चन। मुझे 90 परसेंटाइल के लिए चाहिए 8 से 10 क्वेश्चन। और 85 के लिए चाहिए मुझे 7 के आसपास क्वेश्चन। ये है मेरा कैट। अब पॉइंट इज, आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर कैट। अब मैंने आपको जो बोला था, अब आप देखिए, मैंने आपको बोला 33% की कहानी देख लो। 7, 7, 14, 15, 5, 20, 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66, राइट? कितना हो गया? कितना हो गया? 22 क्वेश्चन पे 33% आता है। सो 22 क्वेश्चन चाहिए तुम्हारे को 85 लाने के लिए। ला सकते हो या नहीं? यस और नो? ला सकते हो या नहीं? यस और नो? क्विकली इन द चैट बॉक्स। यहां से जर्नी शुरू करेंगे, 85 पे रुकना नहीं है, 85 पे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जाओगे। हमारा पहला टारगेट यहां होगा और दूसरा टारगेट हमारा यहां होगा। दिस इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट। ओनली 3-4 स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सिर्फ सत्संग सुनने आए। गाइस, आर यू देयर? आर यू देयर? समझ में आ रहा है? एकदम भावुक हो गए हो क्या? चक्कर क्या है वो तो बताओ। सर हम सोच रहे हैं हम अभी तक क्या कर रहे थे। we are thinking what we were doing till now, right? So ये आपको करना है। अब पॉइंट इज, सर आपने बोल दिया है, अब सर आप ये बताइए कैट के एग्जाम में आता क्या क्या है। सो कैट के एग्जाम में आता क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट कैट का एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वीआरसी पे बात करते हैं। यू नीड अ लॉट ऑफ स्टफ इन रीडिंग। जब आप मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस में आएंगे, आप में से कई लोगों ने मेरी क्लासेस सुनी हुई भी हैं, यू नीड अ लॉट ऑन रीडिंग, ठीक है? सो व्हाई? बिकॉज 75% ऑफ योर पेपर इज नथिंग बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 25% ऑफ योर पेपर इज वर्बल एबिलिटी, जहां पर आपको पैराजंबल्स आ जाएगा। सर दिस इज नॉट व्हाई आई टॉक अबाउट इट सागर। आपको पैराजंबल्स आ जाएगा, पैरा समरी आ जाएगा, एंड देन वी टॉक अबाउट ऑड सेंटेंस पैराजंबल्स, दैट इज कैट। सो आपका पूरा स्टफ इज रीडिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब आप प्रिपेयर करोगे ना, एटलीस्ट 3 महीने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज करना तो छोड़ो, पहले आप रीडिंग से अपना अटैचमेंट बनाओ। रीडिंग आ गया तो सब हो जाएगा।
रीडिंग करना पड़ेगा किस पे? रीडिंग करना पड़ेगा पॉलिटी पे, रीडिंग करना पड़ेगा समथिंग ऑन साइकोलॉजी पे, रीडिंग करना पड़ेगा लेट्स से समथिंग ऑन सोशल साइंसेस के ऊपर, रीडिंग करना पड़ेगा समथिंग ऑन हिस्ट्री, रीडिंग करना पड़ेगा समथिंग ऑन जियोग्राफी। यू नीड टू रीड ऑन डाइवर्स जॉनर जो आप नहीं पढ़ते हैं, राइट? सेकंड, एलआरडीआई। एलआरडीआई में अगर आप कैट के एग्जाम से पहले अगर 500 सेट प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो मजा नहीं आएगा, और एक सेट को अंजाम देने के लिए शायद इनिशियल लेवल पे आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। 500 घंटे शायद लग सकते हैं तुम्हारे को 500 सेट प्रैक्टिस करने के लिए, और तब भी कैट वाले पेपर वाले दिन 501 सेट जो आएगा वो नया होगा। बट द पॉइंट इज आपका लॉजिक आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो आपको लॉजिक बना के देगा ना, 500 सेट सॉल्व करना, सुडोकू सॉल्विंग करना, रीडिंग करना, ये लॉजिक आपसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा, राइट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपने वही चीज है जो आपने 9 तक करी हुई है, ये वही सब चीज है जो आपने 9 तक करी हुई है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब आपने कर रखा है। इनको रिवाइज करने की जरूरत है, अगेन इनका लॉजिक पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज कैट आपको एप्लीकेशन ढूंढने का। और एक बात ध्यान रखिए गाइस, एक बात जो मैं बहुत जबरदस्त तुम्हारे को बोलना चाह रहा हूं, कैट इज एन एग्जाम। देखो कैट जब से कैट आपका एग्जाम लेता है ना, तब से वो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो है ना उसको टेस्ट करता है। आप क्या राइट क्वेश्चंस राइट टाइम पे देख पाते हैं? मतलब बिजनेस फ्रंट के अंदर आप राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं, ठीक है? आप सही क्वेश्चंस टैकल कर पाते हैं? क्या आप सही बिजनेस को एक्वायर कर पाते हैं, राइट? हाउ गुड यू आर इन मैनेजमेंट स्किल्स, आप कम टाइम में कितना ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, आप कम टाइम में कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स इट टेस्ट योर मैनेजमेंट स्किल्स, राइट? इंटरव्यू आपका नॉलेज चेक करता है, ये एग्जाम आपका मैनेजमेंट स्किल्स चेक करता है, right? So this is what CAT exam is all about, right? And this is what I want to share so that you should know that what exactly is happening. So with this, I'm coming to an end of this particular session. Exactly 41 minutes. This is time management. मैंने 11:05 को स्टार्ट किया था और 11:46 को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने बोला था मैं 40 मिनट के अंदर आपके सेशन को कंप्लीट कर दूंगा। So that's it from my side, guys. Myself Prashant, and this is my mobile number. It's 9979848380. So now अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, एक एक करके चैट बॉक्स पे करना शुरू कीजिए। और अगर आप पे कुछ क्वेश्चंस डाउट्स नहीं है तो यू कैन गिव मी योर फीडबैक एज वेल। आपको सेशन कैसा लगा? कई सेशन मेरे को बीच में कई लोग मेरे को इसलिए पूछ रहे थे कि सर आपके साथ अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी हो तो क्या आप देते हैं? यस, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। द बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 9 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 PM to 10:30 PM। इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल्स यू कैन जस्ट पिंग मी विद योर नंबर, या फिर मुझे अभी आप चैट बॉक्स पे नंबर दे सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा लोगों से, राइट? लोग जो है उनसे कनेक्ट करा दूंगा, मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करा दूंगा। दे कैन गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन कि क्या पेडागोजी होगी, हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, हम लोग मॉक टेस्ट कैसे प्रोवाइड कराएंगे, आपको कब कब मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्या प्लानिंग होगा, वो सारा लोग बता देंगे। कल से टुमारो एज आई सेड 9 PM the batch will start for those who are asking me, and for those who are asking me fees, okay Sakshi, I'll share your number for sure. Same goes for you, Mr. Bafna, I'll share with you the details as well. Okay Diksha, I'll share your details as well. Sure Sanskriti, आप लोगों की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। जिन लोगों को डिटेल्स चाहिए, बैच आज कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं तो मैं क्वेश्चंस भी ले रहा हूं, आप लोग फीडबैक भी देते रहिए। अगर आप में कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आप लोग नंबर देते रहिए, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन और डिटेल के अंदर चाहिए तो फॉर श्योर। सर बीए किया है तो कोई स्कोप है क्या? बिल्कुल स्कोप है दोस्त, जाओ, गो है, डू इट, हर जगह स्कोप है मेरे भाई। सर टीवाई बीकॉम के बाद एमबीए करें ना? बिल्कुल सुनील यादव, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, कैट 2022 में दे सकते हो। डिटेल काउंसलिंग चाहिए मेरे को पिंग कर, मैं तेरा काउंसलिंग स्लॉट सेट कर देता हूं, ठीक है? Thank you Kamini for the lovely feedback. Thank you Sanem for the lovely feedback. Okay Sakshi, I'll share with your detail as well. Strategy for starter for beginning for reading. Karan, start with newspaper as much as possible. Newspaper से start करते हैं, हिंदू पढ़, मिंट पढ़, जो पढ़ना है पढ़, but newspaper से start कर दो। लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप का आपके पास लिंक है या नहीं है? क्विकली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली बेसिस पे आर्टिकल्स शेयर करता हूँ। डू यू हैव द लिंक गाइस? यस और नो? I share the articles on Telegram group to read on a daily basis and newspaper on daily basis. If you don't have the link, here is the link, मैंने chat box के अंदर डाल दिया है। प्लीज इसको कॉपी कर लो लिंक को और अभी हाथों हाथ ऐड हो जाओ, हाथों हाथ अभी ऐड हो जाओ, बिकॉज ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी वहां पर, मतलब कहीं पर भी।
सो इससे हाथों हाथ ऐड हो जाओ क्विकली। मैं और सेशंस ले रहा हूँ। संस्कृति का आ गया, शिवानी ओके फाइन। निकिता फीस बेटा गेट इन टच विद देम, दे कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू ऋतिक, आई विल शेयर योर नंबर फॉर श्योर। Anjali Prajapati, fees, you can get in touch with the team. Okay, Puneet Jain, Prakash Rajput, Kamini, ping me, Kamini, we can connect, not a problem. Okay, Akshat Yadav, Sagar बोल रहा है, why do people fail to get a good college? Because Sagar consistency भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं बीच में। अच्छा, स्ट्रेटेजी, मुझे कितना टाइम देना है? जैसे अगर मान लो मैं वर्बल के लिए बात कर रहा हूं तो मुझे 30 मिनट आरसी में देने हैं, 10 मिनट वर्बल में देने हैं, कितना टाइम देना है वो लोग मिस कर जाते हैं दोस्त। ओके दीक्षा, यस गो फॉर इट दीक्षा, गो फॉर इट। नवीन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, अगर आपकी क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी गिवन टू यू, डोंट वरी एट ऑल। गौरव, एमबीए के करने के लिए जाओ भाई, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो एमबीए करने के लिए। थैंक यू प्रथमेश फॉर द लवली फीडबैक, थैंक यू भानु, गेट इन टच विद द टीम। भानु, आपकी क्लास में कितना टाइम देना? नवीन, मेरी क्लास में रोज का 2 घंटे देना है भाई, उसके अलावा प्रैक्टिस देनी है। सिमान, हाउ टू अबाउट क्वांट, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट क्वांट के लिए, सिमान अगर क्वांट में वीक हो तो आरएस अग्रवाल से स्टार्ट कर लो। ओके टाइप्स हो तो तुम ई कोचिंग के अंदर बेसिक्स जो टेस्ट वगैरह है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। पार्शियल क्लासेस क्या होती हैं? लाइक ओनली वर्बल आलसी। सागर, यू कैन गेट इन टच विद द टीम, दे कैन हेल्प यू आउट फॉर श्योर। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर द लवली फीडबैक, थैंक यू। यस बिल्कुल सुनील, दे सकते हो सुनील, बिल्कुल। आईआईटी से एमबीए करने के लिए बीटेक जरूरी है क्या? यस अक्षत, आईआईटी से करने के लिए बीटेक जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन, आप क्या पढ़ाओगे? सागर, आई एम अ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रेनर, आई टीच इंग्लिश। Thank you guys, thanks for the lovely feedback. Thank you Sagar, thank you Dinesh, thanks for the lovely feedback guys, मजा आ गया। नवीन जैन, मेरी फीस क्या है बेटा? फीस प्लीज एक बार टीम से पूछ लेगा, बिकॉज आई डोंट गेट इनटू दैट फीस थिंग एंड ऑल, वो टीम देखती है, प्लीज देख लेगा वहां से। हाँ, नंबर दे दे, मैं तेरे को कनेक्ट करा देता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने में काफी टाइम जाता है करण, बट पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, शुरू के अंदर जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। Thank you. Thanks, everyone. Thank you. Thanks a lot for the lovely feedback, guys. Thanks a lot for listening to me. Thank you. मजा आ गया. Thank you. Thank you. करण ओके है बेटा, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। Thank you, everyone. Thanks for the feedback. Thank you, Garima. Thanks a lot. Thank you, Sivan. Thanks a lot, dear. कामिनी, मेरे को दे दो, मैं कनेक्ट करा देता हूँ। ठीक है बेटा। ओके सुनील। दीक्षा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Ping me. Let's discuss. हाँ जी, they will connect you बेटा, they will connect with you बेटा। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। यस बिल्कुल चल जाएगा दिनेश, बिल्कुल चल जाएगा, गो अहेड डियर। हाँ मोहम्मद अफजल, बिल्कुल कर सकते हो, धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो दोस्त। थैंक यू अवध, थैंक यू। कामिनी, बेस्ट इन व्हाट सेंस? आई मीन परसेंटाइल लेके आजा, सब मिल जाएंगे। बट ये पीपीटी तुम्हारे को वहां से मिल जाएगी, जहां से तुम्हें लिंक आया है वो लोग आपको पीपीटी दे देंगे, डोंट वरी। एंड यू कैन बुक योर, मेरे नंबर जो है जहां से आपको कॉल वॉल आएगा, अगर आपको और डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो यू कैन बुक योर काउंसलिंग स्लॉट एज वेल विद देम, डोंट वरी एट ऑल। Thank you everyone, bye bye, take care, thanks a lot।